Give the next heading as position vector. Can you people see my notebook? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Okay. So here we are going to start with the position vector. Okay. Now, here, when you look at the name of the vector itself, it is saying that it is a position, means it is going to discuss about the position of a particle. For example, ये आपका 2D है. Do you accept this? This is 2D. इसके पास लेंथ और ब्रेड्थ है. बोलो. Yes, miss. Yes, miss. See, you have to speak up, okay? अगर आप लोग मुंह बंद करके रखोगे मैं कैमरास ऑन करवा दूंगी. So you have to speak up. So समझो मेरा पार्टिकल यहाँ पर कहीं मेरा एक बी है वो यहाँ कहीं पर आकर बैठा हुआ है. There is a bee which is sitting here. Okay. So I want to say that कि मेरा ये जो बी है ये कहाँ पर बैठा है, where it is sitting. So I will look at this point. यहाँ पर नीचे देखूंगी और I look at this point. यहाँ पर देखूंगी. तो मैं बोलूंगी कि अगर समझो मैंने इसको x एक्सिस लिया, इसको y एक्सिस लिया, तो मैं बोलूंगी कि मेरा भी यहाँ से इस पोजीशन पे बैठा है और यहाँ से इस पोजीशन पे बैठा है. Is this very correct what I said? Yes, 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 teacher. अगर origin से बात करूं, if I talk from the origin, so यहाँ से if I tell this is OP, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, just let's give an arrow. It starts from O and it ends at P, and I'm saying this is R bar. ठीक है. So this OP represents the position vector of P with respect to O. ये कुछ समझा क्या बोला मैंने कि ये जो OP है, ये जो OP डिस्टेंस है, ये सॉरी पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो बच्चों. P का. P का. P का. ये OP जो है, ये OP ये पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है P का विथ रिस्पेक्ट टू कहाँ से देख रहे हैं हम. अब हम यहाँ से देख रहे हैं क्या, यहाँ से देख रहे हैं क्या, No. कहाँ से देख रहे हैं, O से. from origin, that is with respect to O. So this is the way of writing an OP. That OP represents the position vector of P with respect to O. मेरे पॉइंट P का पोजीशन बता रहा है O के रिस्पेक्ट में कि O से मेरा पॉइंट कितने दूर पे बैठा है, ये मेरा OP बताएगा. Is this everyone clear? Yes, Yes, miss. miss. Yes, miss. किसी को कोई डाउट है इसमें? No, miss. चलो लिख के लो. A vector which gives a position of a particular point, with respect to origin,
with respect to origin, with respect to origin, of a given coordinate system, of a given coordinate system, this is called as coordinate system. ये जो हमने coordinates use किया ना, x axis, y axis, this is called as coordinate system. Of a given coordinate system is known as position vector. Is known as position vector. Let's say आप लोग सब लोग जीनियस एकेडमी पे हो, पता है ना हमारा जीनियस एकेडमी कहाँ है सबको? Do people know where is जीनियस एकेडमी? Yes. Yes, miss. एक बार तो विजिट किया ही है. और आप लोग बोल रहे हो कि you want to go कल्याण स्टेशन, so you will say that समझो the distance between the two आप लोग represent कर रहे हो AB से. So what you will say? AB is the position vector. AB is the position vector of Kalyan station with respect to where? कहाँ से देख रहे हो? With Genius respect to? Academy. Yes, academy. With respect to Genius Academy. मतलब जहां से आप देखते हो और जहां तक आप देखते हो. So you are looking at the position of a Kalyan station with respect to a Genius Academy. Are you clear what I said? Yes, miss. Yes. ये ड्रॉ करके ले लो और ये लिख के ले लो. इसको कैपिटल रखना, कीप इट कैपिटल. हो जाए तो बताना. हो गया? No, miss. Yes, miss. Done, miss. Done? Yes, miss. ठीक है. So let's हो move गया, ahead. miss. Give the next heading as a unit vector. अब ये बहुत समझना है, ये बहुत संभाल कर समझना है, क्योंकि इसका यूज हमको बहुत जगह आने वाला है. दे दिया सबने हेडिंग? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. अब जरा जितने लोग अपने कैमरास ऑन करके सामने रख सकते हैं रख दो. I want you to see you people. I want to see you people actually. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. जो बोल रहे हो जरा ध्यान से समझना
फिर कुछ सम्स करेंगे अगर टाइम बचा तो। लेट्स से आपकी मम्मा मार्केट में एक नई दुकान खुली है, देयर इज अ शॉप, बहुत अच्छी शॉप है, ठीक है। ये यू वेंट टू द शॉप, आप लोग ने बोला चलो इस शॉप का ना हम लोग मटेरियल्स देखते कैसा है। क्या करोगे, जाके 50-60 मटेरियल खरीद लोगे क्या देखने के लिए? कितना नहीं, खरीदोगे? 1 2 कितना खरीदोगे जाके? 1 या 2। एक, बेसिकली एक, दो पे भी ट्रस्ट नहीं करते हम, एक खरीदेंगे। वही चलो एक खरीदते हैं, लेट परचेस 1, अगर अच्छा निकला तो और जाके बाद में ले लेंगे, दिस इज हाउ वी गो। तो टेस्टिंग हमेशा कितने के साथ की जाती है? एक के साथ। 1 1 ओके, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा लेते हैं, आपके राशन की दुकान पर बहुत नया राइस आया हुआ है, अलग तरीके का राइस है, ठीक है, एंड योर मम्मा वांट्स टू हैव अ टेस्ट ऑफ इट, कि पता चले कैसा चावल है, क्या स्मेल है, कैसा टेस्ट है, क्या दिखता है, कैसा दिखता है, पकने के बाद कहीं मोटा तो नहीं हो जाता है, अच्छा राइस है या नहीं है। तो मम्मी क्या करती है, पूरा एक गोनी चावल लेकर आ जाती है टेस्ट करने के लिए। नहीं क्या बोलती है, भैया 1 kg दे दो, मैं बना के देखती हूँ, अगर अच्छा बना तो ठीक है तो फिर ले लेंगे, और नहीं तो फिर नहीं लेंगे। यही होता है सबके घर, मेरे घर पे यही होता है, आपके घर पे भी यही होता है। यस Yes. टीचर। हाँ मतलब मिस। जब भी हम टेस्ट करने जाते हैं, फर्स्ट वी टेस्ट 1 kg, सारी टेस्टिंग 1 kg की एक यूनिट के साथ होती है। यूनिट मीन सिंगल, सारा एक्सपेरिमेंट सिंगल के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता। पूरा एक गोनी चावल के कोई टेस्टिंग नहीं करता, आप मानते हो ये बात? Yes. Yes. यस मिस। ओके, सो ये यूनिट वेक्टर भी है ना बच्चों, ऐसा ही कुछ काम करता है। जब हम एक्सपेरिमेंट, यूनिट ये वर्ड ही बोल रहे हैं, सिंगल, जिसका अमाउंट यूनिट में हो, सिंगल में हो, इसलिए वर्ड सेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मिस। Yes. Miss. सो ये जो यूनिट वेक्टर होता है ना बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। क्या होता है मैग्नीट्यूड? 1 1 1 So the magnitude is a unit. I'll give a unit. हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, whenever we do a experiment, हम इसी के साथ करते हैं, इसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर जब हमें इसका बिहेवियर समझ में आ जाता है, हम कहते हैं कि ये जैसा बिहेव कर रहा है, जैसे ये 1 kg राइस बिहेव करेगा, वैसे ही उसकी जो गोनी है वो पूरा चावल ऐसा ही बिहेव करेगा। अगर वो 1 kg राइस का स्मेल अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो वो पूरा गोनी का, हमारा ऐसा असम्पशन होता है कि वो पूरी गोनी का स्मेल, टेस्ट, खाना पीना सब अच्छा होगा। सो ये 1 kg हमको सारा इंफॉर्मेशन दे देता है। वैसे ये यूनिट वेक्टर हमको किसी भी वेक्टर के बारे में, हम सिर्फ यूनिट क्वांटिटी देखते हैं, उस यूनिट क्वांटिटी का हम डायरेक्शन देखते हैं, उस यूनिट क्वांटिटी का हम बिहेवियर देखते हैं, और हमको पूरे वेक्टर का इंफॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मिस। सो लेट्स टेक सम फिजिक्स वाला एग्जांपल। समझो आपकी कोई गाड़ी है, वो कुछ इस तरीके से चल रही है, ऐसे। अगर आप देखोगे तो ये गाड़ी आगे की तरफ भी बढ़ रही है और ऊपर की तरफ भी जा रही है, दोनों मोशन है इसका। ये समझ पाए मैं क्या बोली? ये गाड़ी आगे की तरफ भी बढ़ती जा रही है और ऊपर की तरफ भी चली जा रही है, मतलब 2 डायरेक्शन में मोशन कर रही है ये। यस ये स्टेटमेंट सबको समझा मैंने क्या कहा? कि ये राइट साइड में भी जा रही है और उसका मोशन ऊपर की तरफ भी है, 2 मोशन कर रही है ये, एक ऐसा और एक ऐसा, दोनों को कंबाइन करके आपको ऐसा ऊपर की तरफ मोशन मिल रहा है। मतलब इस डायरेक्शन में भी मोशन है और इस डायरेक्शन में भी मोशन है, देखो, इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट ऑल्सो एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स अप ऑल्सो। ये स्टेटमेंट सबको समझा मैंने क्या कहा? यस मिस। Yes. So, Miss.
रोमिन समझा? कैथरा समझ में आया? Yes, miss. हाँ मिस। इट हैव टू मोशंस टुगेदर। अब मैं क्या करूंगी पता है? व्हाट आई विल डू, इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए मैं क्या करूंगी, इस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर लूंगी, छोटा सा वेक्टर, मतलब एक यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, उस वेक्टर को लूंगी, और इस डायरेक्शन के भी यूनिट वेक्टर को लूंगी, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगी, और वो रिजल्टेंट भी एक यूनिट वेक्टर आएगा जो इस डायरेक्शन में आएगा। तो जो रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर आया ना, वो मुझे ये समझाता है कि ये राइट साइड में भी जाता है और ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है। मतलब मैं पूरे वेक्टर के साथ काम नहीं करूंगी, मैं किसके साथ काम करूंगी, सच्ची इसका डायरेक्शन समझने के लिए मैं किसके साथ काम करूंगी, एक यूनिट क्वांटिटी के साथ काम करूंगी। और जब मुझे इस यूनिट क्वांटिटी, एक यूनिट क्वांटिटी मैंने राइट साइड में ले ली, एक यूनिट क्वांटिटी मैंने ऊपर की तरफ ले ली, जब मैंने इनका रिजल्टेंट निकाला तो मुझे पता चला कि ऐसी यूनिट क्वांटिटी आ रही है जिसका डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है। तो ये यूनिट क्वांटिटी लेकर ही मुझे पूरा मोशन समझ में आ गया कि ये राइट साइड में भी जा रहा है और ये ऊपर की भी तरफ जा रहा है। दिस इज द मोशन ऑफ द होल बॉडी। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, miss. तो यूनिट वेक्टर मोस्टली हम इसीलिए निकालते हैं कि हमको मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। मुझे पूरे मोशन को देखने की जरूरत नहीं है, मैं अगर यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन को समझ जाऊं तो मेरा पूरा मोशन का क्या डायरेक्शन है मुझे ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इसका क्या बिहेवियर है। ऐसे एक एक करके देखने की जरूरत नहीं, सीधा इसके यूनिट वेक्टर को देख लेती हूँ, ये मुझे बता देगा कि ओके, इसका डायरेक्शन मुझे बता देगा कि ओके इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स अप टुगेदर। सो यूनिट वेक्टर जो है आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे देता है कि ठीक है ये यूनिट क्वांटिटी का ऐसा बिहेवियर है, तो पूरा मोशन है उसका भी वही बिहेवियर होगा। समझो यहाँ पर बहुत, प्लीज आप ध्यान से सुनो, समझो यहाँ पर बहुत सारे एरोस है जो बाहर की तरफ आ रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं, दे आर कमिंग आउट। जस्ट इमेजिन इन योर ब्रेन कि there are number of arrows which are coming out of the paper, बहुत सारे एरोस हैं। तो हमको हर एक एरो के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे, हम बोलेंगे एक यूनिट वेक्टर है और वो यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस डायरेक्शन में एरोस आते हैं। एरोस कहाँ आ रहे हैं, एरोस कहाँ आ रहे हैं बोलो? बाहर की तरफ। आउट ऑफ द पेपर, ऐसे ऐसे आ रहे हैं एरोस, बहुत सारे एरोस ऐसे आ रहे हैं। तो मैं सारे एरोस का इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द एरोस। मैं क्या कहूंगी, एक यूनिट वेक्टर ले लूंगी और बोलूंगी ये जो यूनिट वेक्टर है ना, ये जो यूनिट वेक्टर है इसका डायरेक्शन कहाँ है, वेयर इट इज, कहाँ है, आउट ऑफ द पेज। और ये अकेला यूनिट वेक्टर सारे एरोस को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये जो आपका यूनिट वेक्टर है ना बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, एक सिंगल यूनिट से काम करता है ये, पर ये आपके वेक्टर की मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन को दे देता है कि आपका वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, उसके डायरेक्शंस का सारा इंफॉर्मेशन दे देता है। Are you understanding what I'm trying to say? Yes, miss. Yes, teacher. Yes. Okay. अब समझो, you are living in a 3-dimensional world. X-axis, Y-axis, Z-axis. So there will be a unit vector, एक छोटा सा वेक्टर ले लेते हैं जो x-axis को रिप्रेजेंट करेगा। There will be a unit vector जो पूरी तरीके से किसको रिप्रेजेंट करेगा, Z-axis को। और there will be a unit vector
जो पूरी तरीके से वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। कुछ समझे? जैसे देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनका रिजल्टेंट निकाला तो एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इन दोनों का रिजल्टेंट है, जो ये बता रहा है कि वो लेफ्ट साइड में भी जाएगा और वो राइट साइड में भी जाएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ये यूनिट वेक्टर। समझ रहे हो? सो थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 3 यूनिट वेक्टर होता है, एक जो लेफ्ट राइट को रिप्रेजेंट करता है, एक जो ऊपर नीचे को रिप्रेजेंट करता है और एक जो अंदर बाहर को रिप्रेजेंट करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एक यूनिट वेक्टर कौन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? एक्स को। एक यूनिट वेक्टर कौन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? जेड को। और एक यूनिट वेक्टर कौन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? वाई को। ये सबको क्लियर हुआ? Yes, miss. चलो जरा नाम दे देते हैं। एक्स को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम आई कैप बोलते हैं। दिस कैप shows that you are talking about a unit vector. ये कैप बताता है कि छोटा बच्चा है, इसको टोपी पहना दिया, यूनिट है ना, 1 साल का बच्चा है। आई कैप रिप्रेजेंट्स योर एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर। Yes. जे कैप रिप्रेजेंट्स द वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर और के कैप रिप्रेजेंट्स द, सबको टोपी बनानी है, के कैप रिप्रेजेंट्स द जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर। अब ये बात जरा ध्यान दो, हम लोग जब वेक्टर लिखते थे हम बार डालते थे, याद है? Yes, miss. Yes, तो miss. यूनिट वेक्टर लिखते समय हम क्या डालते हैं? व्हाट वी पुट अ Cap. कैप। ये कैप देखते आपको समझ जाना है कि ओके दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट अ यूनिट वेक्टर। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, miss. Yes. सो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर इज आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर इज जे कैप एंड जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर इज के कैप, आई जे के। अब आई कैप जो है, जो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, उसका जे कैप से कोई लेना देना नहीं है, उसको जे कैप से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप कभी भी आई कैप के यूनिट वेक्टर को जे कैप के यूनिट वेक्टर से ऐड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट। और ना आप सिंपली जे कैप के यूनिट वेक्टर से के कैप के यूनिट वेक्टर को ऐड कर सकते हो। एग्जांपल लूंगी तो और अच्छे से क्लियर होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। I'll again take an example for this. और ना आप के कैप के यूनिट वेक्टर को आई कैप के यूनिट वेक्टर से ऐड कर सकते हो। कोई भी यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। मैं बताती हूं क्यों आगे जाके। पहले मैंने आपको यूनिट वेक्टर के बारे में बताया, मैं रिपीट कर रही हूँ मैंने क्या क्या कहा था। मैं जब यूनिट वेक्टर की बात करती हूँ मैं यूनिट मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की बात करती हूँ। वो एक यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर मुझे सारे इंफॉर्मेशन दे देगा कि मेरे वेक्टर का क्या डायरेक्शन है। इज दिस एवरीवन क्लियर? Yes, miss. नेक्स्ट मैंने कहा कि एक्स कैप का अपना एक यूनिट वेक्टर होगा, वाई कैप का अपना एक एक्स का एक अपना यूनिट वेक्टर होगा, वाई का अपना एक यूनिट वेक्टर होगा और जेड का अपना एक यूनिट वेक्टर होगा। एक्स का यूनिट वेक्टर इज आई कैप, वाई का यूनिट वेक्टर इज जे कैप एंड जेड का यूनिट वेक्टर इज के कैप। इज दिस क्लियर? Yes. ओके। फिर मैंने एक स्टेटमेंट पास किया कि यूनिट वेक्टर को लिखते वक्त हमेशा उसके ऊपर कैप डाल दिया जाता है क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है कि वो छोटे बच्चे की बात कर रहा है, वो यूनिट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। इज दिस एवरीवन क्लियर? And the Yes, last miss. statement which I stated, I said that
कोई भी यूनिट वेक्टर्स i j k ये एक दूसरे के साथ लिखे जा सकते हैं, बट उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब इवन इफ यू से 3i cap plus 4j cap, so you cannot write it as 7ij. No, 3i cap plus 4j cap will remain as 3i cap plus 4j cap only. इनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कुछ समझे? Yes, miss. जरा और अच्छे से समझते हैं कि ऐसा क्यों। Just look at the things. I cap, J cap, K cap। ठीक है, समझो आप ऐसे जा रहे हो, यहां से आप 3 तक गए, सो यू राइट इट एज 3i cap। मतलब मैं 3 चली हूं, इन विच डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन? आई कैप किस यूनिट वेक्टर को किसका यूनिट वेक्टर है? एक्स एक्सिस का। X. Yes. मतलब मैं 3 टाइम्स चली हूं अलोंग द एक्स एक्सिस, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। इसका यूनिट वेक्टर जो है ना, ये बता रहा है कि मेरे साथ इन्होंने, यूनिट वेक्टर मतलब सिंगल मैग्नीट्यूड, मेरे साथ इन्होंने 3 मल्टीप्लाई किया है। इट मींस मैं 3 पॉइंट आगे बढ़ी हूं, इन विच डायरेक्शन, अलोंग विच डायरेक्शन, अलोंग विच डायरेक्शन? X axis. X. एक्स डायरेक्शन। समझ में आया मैंने क्या कहा? मतलब ये अब तुमको हर पॉइंट पे बताने की जरूरत नहीं है कि यू आर मूविंग इन एन एक्स डायरेक्शन। आपने क्या किया? आपने यूनिट वेक्टर लिया आई कैप, क्या आप एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को ले लिया आपने और मल्टीप्लाई क्या कर दिया? आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। मतलब आप सिंपली ये बता रहे हो कि आप 3 पॉइंट आगे मूव कर चुके हो अलोंग एक्स एक्सिस। जैसे सिंपली आप क्या करते हो, देखो एक पेन का प्राइस 2 रुपीज है, ये एक पेन का प्राइस है, आपने 10 पेन ले लिया, तो अब सिंपली क्या करोगे? एक एक ऐड करते जाओगे क्या? नहीं, आप जो सिंगल वैल्यू होती है उसके साथ आप कितना पॉइंट ऐड कर रहे हो उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो। वैसे ही यहाँ पर ये यूनिट है, जैसे वो 2 रुपीज था, वैसे ही यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट का वैल्यू है। आप जितने भी पॉइंट आगे बढ़ते जा रहे हो आप सिंपली मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। आप 4 से आगे बढ़ गए, आप 4 इंटू आई कर दोगे। आप 5 से आगे बढ़ गए, आप 5 इंटू आई कर दोगे। सो दिस आई इज अ यूनिट वैल्यू। जैसे ये 2 रुपीज यूनिट पेन की वैल्यू, यूनिट पेन की वैल्यू थी, यूनिट पेन मतलब सिंगल पेन की वैल्यू थी। तो अब सिंगल पेन की वैल्यू के साथ आप जितनी भी पेन खरीदते जाते हो आप मल्टीप्लाई करते चले जाते हो। वैसे ये आई जो है ये यूनिट की वैल्यू है, दिस इज वैल्यू ऑफ अ यूनिट। उसके साथ आप 3 आगे बढ़ गए तो 3, 4 आगे बढ़ गए तो 4, 5 आगे बढ़ गए तो 5, ऐसे 5 आई कैप, 6 आई कैप, 7 आई कैप आप रिप्रेजेंट करते हो। कुछ समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes. Yes. और ये आई कैप आपको अपने आप बता दे रहा है कि ओके यू आर मूविंग टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओमकार समझ में आ रहा है? Yes, teacher. जिष्णु, संस्कार, Yes, miss. समझ आ रहा है। श्री समझ रहे Yes, हैं? sir. Yes, sir. Yes, ma'am. मित्रा, Yes, miss. महेंद्र, जोमिन, यहाँ पे सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? What I am Yes. trying to miss. say, Yes, miss. I am trying to say कि ये आई कैप यूनिट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाती हूँ मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करती जाती हूँ,
कि ठीक है मैंने एक पेन खरीदा तो 2 रुपीज था, ये 2 रुपीज मेरा यूनिट का वैल्यू है। मैं 2 पेन खरीदूंगी तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, मैं 3 पेन खरीदूंगी तो 2 इंटू 3 6। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी इस यूनिट वैल्यू के साथ, इस यूनिट की वैल्यू के साथ मैं मेरे नंबर को मल्टीप्लाई करती चली जाऊंगी। वैसे ही ये मेरा यूनिट का वैल्यू है, ये जो आई है ये मेरा यूनिट का वैल्यू है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती जाऊंगी, मैं 2 के साथ आगे बढ़ी तो मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 के साथ आगे बढ़ी 3 मल्टीप्लाई कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, miss. Yes, और miss. ये आई कैप ये बता दे रहा है कि आई एम मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हूँ। लेट्स चेंज द डायरेक्शन। अब जैसे आप डायरेक्शन चेंज करोगे, अब आप आई कैप में मूव कर रहे हो क्या? No, miss. No. अब आप कौन से डायरेक्शन में चले गए? आप J cap. J cap. जे कैप डायरेक्शन, दैट इज वाई एक्सिस। अब यहाँ पर आप जे कैप का यूज करना चालू करोगे। समझो आप 4J कैप से आगे बढ़ गए, तो क्या आप एक्स एक्सिस के अलोंग में आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया है क्या? नहीं। दोनों No, के miss. डायरेक्शंस अलग अलग है, दोनों के डायरेक्शंस हाँ, अलग miss. अलग है। Yes, यही miss. रीजन की वजह से, दोनों के डायरेक्शंस अलग होने की वजह से ना ये इसमें इन्वॉल्वमेंट करेगा ना ये इसमें इन्वॉल्वमेंट करेगा। आपका सीधा आप लिखते वक्त ऐसा लिखोगे, आई हैव मूव्ड अलोंग 3 आई कैप प्लस 4J कैप। ये पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको। मैं 3 से एक्स एक्सिस के अलोंग गई हूँ और 4 से वाई एक्सिस के अलोंग गई हूँ। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है, क्योंकि ये आपका डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं। होप यू पीपल आर क्लियर व्हाट आई ट्राइड टू से। Yes. और बच्चों ये बात ना आप खुद एक्सपीरियंस करते हो, ऐसी कोई चीज नहीं है कि सिर्फ लिखने के लिए मैं मैथमेटिकली ऐसा लिख रही हूँ, आप खुद एक्सपीरियंस करते हो। सिंपल सा फंडा है, जब मैं बोल रही हूँ मैं सीधा सीधा जा रही थी, फिर मैं मुड़ गई, मैं ऐसा ऐसा जा रही हूँ, क्या सीधे सीधे डायरेक्शन में मैंने और वैल्यू कवर किया है क्या? मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या मैं सीधा सीधा मैं यहाँ से 3 मीटर गई हूँ और यहाँ ऊपर मैं 4 मीटर में गई हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या मैंने सीधा सीधा 7 मीटर कवर किया है? No. आप No, बोलते वक्त miss. बोलोगे ना, miss. मैं सीधा 3 मीटर गई हूँ, फिर मैं लेफ्ट मारा है और फिर 4 मीटर कवर किया है, यही बोलते हो ना आप लोग? या ऊपर की तरफ Yes, मैंने ma'am. 4 मीटर कवर किया है, ऐसे ही बोलते हो ना? हाँ, miss. किसी को अगर आपको बताना होता है कि आप कितना दूर चल के आपने कैसे कैसे कवर किया, तो कैसे बोलते हो? आप थोड़ी ऐसे बोलते हो कि मैं 7 मीटर कवर करके आई हूँ सीधा सीधा। आप कैसे बोलोगे? मैं 3 मीटर सीधा चली, फिर 4 मीटर में ऊपर की तरफ चली, फिर मैं पहुंची। ये करेक्ट वे होता है बोलने का। अगर आप डायरेक्ट बोलोगे कि मैं 7 मीटर सीधा सीधा चली, तो पर्सन स्ट्रेट बाहर निकल जाएगा। अगर आपको परफेक्ट यहाँ उस पर्सन को पहुंचाना है, तो आप कैसे बोलोगे? 3 मीटर सीधा चलना और 4 मीटर ऊपर की तरफ चलना, तो तू उसके घर पे पहुंच जाएगा। ऐसा बोलोगे क्या 7 मीटर सीधा सीधा चलना? विल यू से लाइक दिस? No, miss. No, miss. No, miss. इन शॉर्ट, जब आप डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हो तो आपको हर डायरेक्शन को अलग अलग बोलना होता है, आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप आई के साथ आई को ही ऐड कर सकते हो, जे के साथ जे को। अच्छा ठीक है, अब चलो ये हो गया, इतना चल दिया। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे चले जाता है, ऐसे सीधा, या लेट्स टेक दिस। यहां से मैं 3 चली, यहां से मैं 4 चली, पर मैं 4 चलने के बाद भी अपने पोजीशन पे नहीं पहुंची, मुझे यहीं से और 3 आगे बढ़ना पड़ा। दिस इज 4J कैप, दिस इज 3 आई कैप, अभी मुझे और 3 आगे बढ़ना पड़ा, तो मैं तो J एक्सिस के मैं Y एक्सिस के क्रॉस ही आगे बढ़ रही हूँ। अब ये ऐड हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैं Y एक्सिस को क्रॉस ओवरऑल कितना चली हूँ? अब आपका वेक्टर क्या बन जाएगा? 3i कैप प्लस 7, 7J cap. 7J cap. मतलब आप J कैप को J कैप से ऐड कर सकते हो, I कैप को I कैप से ऐड कर सकते हो, K कैप को K कैप से ऐड कर सकते हो सिंपली। वैसे ही आप I कैप को I कैप के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, J कैप को J कैप के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और K कैप को K कैप के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं, आप लिख सकते हो साथ में,
कि भाई इतना भी चलना है और इतना भी चलना है. You can write it like this, but you cannot add them and write that it is 10. You cannot write like this, क्योंकि इनका डायरेक्शन मैटर करता है. Hope you are understanding what I am trying to say. Yes, miss. Yes, miss. So this I cap, this J cap, and this K cap represents the unit vectors in their respective axis, and this 3, this 7, this represents कि आपने x axis में आप कितना चले हो, y axis में आप कितना चले हो, और z axis में आप कितना चले हो. Hope everyone is clear with this points, because ये बहुत लाइफ टाइम यूज होने वाली चीजें हैं. ये अभी Yes, आपको लग रहा होगा, पर आप आगे बहुत यूज करने वाले हो इन चीजों को. Now there is a formula to find a unit vector. आपको ऐसे कैलकुलेशन के लिए दिया जाएगा कि यूनिट वेक्टर निकाल के दो, वो मैं आगे जाऊंगी तब समझाऊंगी. यहां तक सबको क्लियर है कि Yes, यूनिट miss. वेक्टर्स क्या है? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ अ सिंगल मैग्नीट्यूड. वो एक सिंगल मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर सारी बातें बता देता है आपके वेक्टर के बारे में. ये आपका पूरा वेक्टर बन गया एक्चुअली, देखा जाए तो. इसने बता दिया है कि मेरा जो पूरा वेक्टर है ना, उसका 3 पार्ट आई कैप डायरेक्शन में चलता है, और उसका 7 पार्ट कौन सा डायरेक्शन में चलता है? 7 कैप डायरेक्शन में. ये मेरे पूरे वेक्टर का इंफॉर्मेशन है. देखो, दिस इज अ वेक्टर. इसने मेरे पूरे वेक्टर का इंफॉर्मेशन दे दिया, आई कैप ने और जे कैप ने. अगर वो बाहर की तरफ भी चल रहा होता तो बीच में आगे के कैप भी आ जाता. Hope you are understanding what I am trying to say. Yes, Yes, miss. Yes, miss. So ये आई कैप, जे कैप, के कैप, ये यूनिट वेक्टर्स मिलकर सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपके वेक्टर के बारे में, और इन्हीं को यूज करके आपका वेक्टर बनाया जाता है. कुछ बुक्स में आई कैप, जे कैप, के कैप यूज करने के बदले वो लोग एक्स कैप, वाई कैप, स्मॉल एक्स कैप, स्मॉल वाई कैप और स्मॉल जेड कैप का भी यूज करते हैं. नोटेशंस अलग अलग है, मीनिंग वही है. हम जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप यूज कर रहे हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के लिए, वो लोग स्मॉल एक्स कैप, स्मॉल वाई कैप, स्मॉल जेड कैप यूज करते हैं. कैप देख के समझ जाना है आपको. दे आर टॉकिंग सिंपली अबाउट अ यूनिट वेक्टर. कोई भी अल्फाबेट यूज करे. समझ में आ गया मैंने क्या कहा? Yes, miss. ठीक है. अब यूनिट वेक्टर किसी, अगर समझो आपको एक वेक्टर दे दिया और बोला कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो कैसे निकाला जाता है जरा वो समझो. आई एम रिप्रेजेंटिंग द यूनिट वेक्टर बाय यू कैप से रिप्रेजेंट कर रही हूँ फिलहाल के लिए. जस्ट कैसे निकालते हैं जरा उसका फॉर्मूला देखो. यूनिट वेक्टर को सिंपली, जो आपका वेक्टर दिया होगा ना, जैसे पी बार, पी कैप लेने का, डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने का. अगर आपको कभी बोलता है कि कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, तो सिंपली क्या करने का, उसका जो वेक्टर है ना बच्चों, उस वेक्टर को लिखने का, डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर देने का. अब मैम ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अब जरा ध्यान से समझो, मैं समझाने जा रही हूँ. फिलहाल शॉर्टकट में समझाऊंगी, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आगे सीखेंगे. फिलहाल शॉर्टकट समझा रही हूँ, आगे जाके डिटेल में सीखेंगे कि क्या होता है. फिलहाल सिर्फ शॉर्टकट समझ लो, ठीक है? अभी ये समझ लोगे, जैसे हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पहले यूनिट कन्वर्जन सीखा था, फिर हम डिटेल इंफॉर्मेशन डायमेंशंस के साथ गए थे, याद है? डू यू रिमेम्बर? आपके लिए इजी हो Yes, गई थी ma'am. चीजें समझना. वैसे ही पहले शॉर्टकट समझेंगे, फिर डिटेल में जाएंगे कि क्या होता है, क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, वो मैं आगे चैप्टर में सिखाऊंगी. समझो आपको एक वेक्टर दिया है पी बार 2i कैप प्लस 2j कैप, ये आपका वेक्टर है, ठीक है? और बोल रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो, कि इसके यूनिट के वेक्टर की वैल्यू क्या होगी. ये जो आई है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसा दिखेगा ये. सिंपली क्या करना होता है, यू लो, पी बार अपॉन मॉड ऑफ पी बार.
मॉड कैसे निकालता है? ये 2 दिख रहा है बच्चों, पहले रूट ले लेने का, टेक अ रूट। ये 2 दिख रहा है बच्चों, कैन यू सी द 2? उसका स्क्वायर ले लेने का। मतलब ये पूरा जो वैल्यू दिया है ना, सबका स्क्वायर लेके सबको ऐड कर देने का। 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4, सो आपका मैग्नीट्यूड का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ 8। समझा क्या किया? आई कैप के आगे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लो, जे कैप के आगे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लो, अगर के कैप होता है तो उसका भी स्क्वायर ले लो और उसको रूट में डाल के सिंपली ऐड कर दो, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड। मैम ये क्या हो रहा है, इसका डिटेल इंफॉर्मेशन की ये क्या हो रहा है मैं आगे सिखाऊंगी, अभी नहीं। अभी फिलहाल समझ जाओ कि मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं। टेक अ रूट, जितनी भी वैल्यूज दी है टेक अ स्क्वायर ऑफ देम एंड ऐड देम एंड पुट देम इनसाइड द रूट। इज दिस क्लियर हाउ टू कैलकुलेट अ मैग्नीट्यूड? अब इस पूरे वेक्टर को अभी हमने देखा ना कि व्हाट वाज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वाज सिंपली पूरे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। मेरा वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप, डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। सो आपका यूनिट वेक्टर बन जाता है 2i कैप बाय अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2j कैप फॉर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 8। आप जब इसको डिवाइड कर दोगे ना आपको यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू मिल जाती है। मतलब आई कैप डायरेक्शन का यूनिट वैल्यू निकाल लिया है और आपने जे कैप डायरेक्शन का यूनिट वैल्यू निकाल लिया है। कैप डालना है, समझा क्या किया है? जरा इस सम को ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, जस्ट देखते जाओ। मैंने कहा आई वांट टू कैलकुलेट अ यूनिट वेक्टर फॉर अ गिवन वेक्टर पी। सो मैंने क्या किया, जो वेक्टर दिया है उसको मैंने बताया आपको कि जो भी वेक्टर दिया रहेगा उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देना होता है। तो मेरा वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप। मैंने बोला चलो मैं पहले आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखाती हूँ। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वो जो भी वेक्टर दिया है उसको रूट में ले लो, रूट में लेने के बाद उसके जो कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं उनका स्क्वायर ले लो और उनको ऐड कर दो। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 इज अंडर रूट ऑफ 8। ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड। याद है मैग्नीट्यूड को मॉड में रखते हैं, मैंने समझाया था। Yes, ma'am. ये आपका आ गया Yes. मैग्नीट्यूड। अब ये जो मैग्नीट्यूड आ गया ना उसको हमको क्या करना है, हमारा जो हमको जो वेक्टर दिया है पी बार उससे उसको इस मैग्नीट्यूड को उस पी बार को डिवाइड करवा देना है। सो 2i कैप प्लस 2j कैप इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 8। सो 2 ये अंडर रूट ऑफ 8 2i कैप के नीचे भी जाएगा, 2j कैप के नीचे भी जाएगा। ये आपका यूनिट वेक्टर निकल गया। 2i कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 8। इज दिस एवरीवन क्लियर? दिस इज द होल यूनिट वेक्टर। आपके ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू है ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन वेक्टर। Yes, yes. मतलब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो ना बच्चों, अगर आप एक चीज समझने की कोशिश करो, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। इससे जरा और डिटेल में लेके जाती हूँ तो शायद और अच्छे से क्लियर हो। कि जब हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं बच्चों, हमने क्या किया, जो भी उसकी वेक्टर की वैल्यू थी डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर दिया, यही किया। मतलब मुझे पता करना है कि आई कैप की वैल्यू क्या है, तो सिंपली जो आई कैप का वेक्टर वैल्यू है दैट इज एक्स वेक्टर डिवाइड बाय द होल मैग्नीट्यूड। जे कैप का वेक्टर डिवाइडेड बाय द होल मैग्नीट्यूड। के कैप का वेक्टर डिवाइडेड बाय द होल मैग्नीट्यूड। मुझे यूनिट वेक्टर की वैल्यू बनाकर दे देता है।
आई एम रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड बाय एक्स, एक्स बार नहीं है, सिर्फ एक्स बोल रही हूँ। एक्स बार बोलूंगी तो एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो मेरा आई कैप क्या होगा? जे कैप क्या होगा? के कैप क्या होगा? एक्स इज अ मैग्नीट्यूड, मैंने मैग्नीट्यूड को एक्स ऐसा सिंबल दे दिया, कोई और भी सिंबल दे सकते हो। तो यूनिट वेक्टर इज सिंपली वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। पीछे हमने वही किया था ना, 2 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। Yes, miss. Yes, miss. So unit vector is basically vector divided by its magnitude. Hope you understand what I'm trying to say. Yes, miss. It is simply vector divided by its magnitude. जरा इसको ध्यान से देखो, मैं वापस से रिपीट करने वाली हूँ यूनिट वेक्टर. We are going to repeat the unit vector. चलो एक शॉर्ट फ्लो फॉर्म में यूनिट वेक्टर समझते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम सम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. लेट्स टेक अ फ्लो चार्ट ऑफ यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड. ये सबको क्लियर है? It gives all the information about a vector. If I take 3 axes, हर एक्सिस का अपना एक यूनिट वेक्टर होता है. आई कैप, जे कैप, के कैप. आई कैप Yes, miss. जे कैप के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगा, जे कैप के कैप के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगा. मतलब ये दोनों एक दूसरे से लिखे जा सकते हैं प्लस करके, पर उनको ऐड करके आंसर नहीं आएगा. You cannot add that. Do you remember this? Do you remember this? Yes, Everyone? miss. Yes, miss. फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा. पहली चीज इंपॉर्टेंट यही पढ़ी यूनिट वेक्टर के बारे में कि इट्स अ सिंगल मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर, यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर. दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि हर एक्सिस के अक्रॉस एवरी एक्सिस यू हैव अ यूनिट वेक्टर. थर्ड पॉइंट, यूनिट वेक्टर को कैप में डाला जाता है. कहीं पे कोई चीज कैप में डाली है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ यूनिट वेक्टर. सिंबल कोई भी यूज करे. फॉर्मूला पढ़ा. फोर्थ पॉइंट, इफ यू वांट टू कैलकुलेट अ यूनिट वेक्टर ऑफ समथिंग, सिंपली यू हैव टू गो फॉर जो भी वेक्टर दिया है डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. अगर आई एक्सिस का बोल रहा है, एक्स एक्सिस का बोल रहा है, आई क्या बोल रहा है, तो इट विल बी ऑफ कोर्स एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स. एक्स इज अ मैग्नीट्यूड. लेट्स से एक्स इज अ मैग्नीट्यूड. ये मैं खुद दे रही हूँ. मैम एक्स ही क्यों, वाई क्यों नहीं? वाई ले लो, जेड ले लो, स्टार ले लो. स्टार इज अ मैग्नीट्यूड. तो आई कैप डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर इज सिंपली एक्स बार डायरेक्शन में जो भी वैल्यू है डिवाइडेड बाय स्टार, दैट इज इसका मैग्नीट्यूड. जे बार डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है तो सिंपली जे वाई बार का वेक्टर ले लो डिवाइडेड बाय स्टार. स्टार इज अ मैग्नीट्यूड. तो जो भी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देते हैं तो वी गेट अ यूनिट वेक्टर. जो भी वेक्टर है जब हम उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देते हैं हमको यूनिट की वैल्यू मिल जाती है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू मिल जाती है. इज दिस एवरीवन क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, Yes, miss. miss. मतलब अगर मुझे कहा गया, इफ समवन सेड मी कि मेरा वेक्टर जो है, मेरा एक वेक्टर है जो कि है 4i कैप माइनस 1j कैप माइनस k कैप, ये मेरा वैल्यू है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल के दे दो. सिंपली क्या करने का, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो. निकालने के लिए मैंने बताया क्या करते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, पहले रूट लेते हैं 4 का स्क्वायर. मैम ये -1 है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाता है.
16 -1 का स्क्वायर इज 1, -1 का स्क्वायर इज 1, सो इट इज अंडर रूट ऑफ 17 18, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 18, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट ऑफ 18। ये सबको समझा? Yes, Yes, miss. कोई ये शायद Yes, जिसको miss. मैग्नीट्यूड नहीं समझाओ, क्या किया? सिर्फ रूट लिया और आगे जो भी कोएफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर करके उनको ऐड कर दिया है। रचना समझा? रचना, Yes, miss. अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, आर कैप क्या करूंगी? 4i कैप अंडर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय माइनस जे कैप अंडर रूट ऑफ 18 माइनस के कैप अंडर रूट ऑफ 18, आ गया मेरा यूनिट वेक्टर, आर बार का यूनिट वेक्टर निकल गया। कुछ समझे कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर? Yes, miss. Yes. सिंपली वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। देखो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर ऐसा निकला है, उसका एक्स बार, उसका सॉरी या उसका एक्स बार डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसका वाई बार डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसका के बार डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इज दिस क्लियर? ये Yes, सारी miss. चीजें मैं नेक्स्ट टाइम फिर से रिपीट करूंगी, यूनिट वेक्टर वापस समझेंगे और फिर हम समझ करेंगे और फिर हम लिख के लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ये सवारी है। Yes, sir. हाँ, नहीं आपका